Hi everyone. Just a moment, I'll be there in a while. Hey guys, this is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you back again to Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. Bachcho, again an amazing Olympiad session. I'm like, I so love these sessions, isn't it? They are like my favorite. Adding on, आप हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप क्यों हैं, बट देन ऑफ कोर्स देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स विद अस, इजंट इट, दे आर गेटिंग एडेड ऑन टू दिस अमेजिंग फैमिली लाइक ऑन अ डेली बेसिस. So for them, a little bit information about Talking Textbooks, that this is an amazing platform for your school education, for classes 6 to 10th of course, and if you are aiming for any Olympiads for 6th, 7th and 8th standards, of course we are there for you. And अगर आप कुछ ऐसे examinations के लिए aim कर रहे हैं जैसे कि NTSC, NSCJS या फिर Pre-RMO, उसके लिए भी है Talking Textbooks, right? So we as a team are there for you for everything. So basically किसी भी चीज़ का फाउंडेशन बनाना है, कुछ भी है, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स हैं, चाहे वो ओलंपियाड्स है, चाहे वो इतने अच्छे और बेहतरीन और शानदार एग्जामिनेशंस हैं, वी आर ऑलवेज देयर गाइस. ऑलराइट, सो दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा. अब मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे ओलंपियाड सेशन से, विच इज गोना बी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सो आई रियली होप यू गाइज मस्ट हैव रिवाइज्ड, बिकॉज ऐसे ओलंपियाड सेशंस में मजा तभी आता है यार जब आप रिविजन वगैरह करके पूरा थ्योरी इंटैक्ट करके एंड देन after that you're coming to this platform, right? Because पता है बच्चों उसके बाद क्या होता है, it's more of a fun filled thing, है ना? So ऐसा नहीं लगता हमें कि यार we are doing some क्या बोलते हैं, oh god that's a serious test or what. अगर हम prepared हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन कैसे हो रही है, सारे लेक्चर्स हैं, रिविजन है, सब कुछ है, तो फिर टेंशन किस बात की, है ना? So चलो moving ahead, this is the amazing team of Talking Textbooks here. So there we go. Just a moment, थोड़ा सा इशू यहाँ पे. Okay, no problem. We're gonna start it here. So ये है हमारी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की टीम जिसके बारे में आपको पता ही है ना, right? And then moving ahead, again this is a little bit information about me of course. Okay, so I'm gonna move here again and then ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल. सो बच्चों बेसिकली यहाँ पे जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि गाइज एज यू नो अबाउट टेलीग्राम ऐप, सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स एज अ प्लेटफॉर्म एंड हाउ इज आवर स्टडी मटेरियल एंड एग्जैक्टली हाउ इज इट एब्सोल्युटली अलाइंड विद योर प्रिपरेशन, दैट यू डोंट नीड टू मूव हियर एंड देयर एंड गेट इनटू ऑल दोज हसल्स एंड ऑल, डोंट वरी. सो वी हैव ऑलरेडी सेटेड अप एवरीथिंग हियर फॉर यू गाइज. ओके, सो आवर सेटअप इज ऑलरेडी अमेजिंग. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट विजिट द टेलीग्राम ऐप. यू कैन गेट एवरी डिटेल्ड information like about our DPPs, about our study material, and exactly what is there, what is hidden in the treasure of Talking Textbooks. You can go and visit that app अपनी classes के according है. और if you wanna have a sneak peek in other sessions as well कि यार basically इस class में कैसा material है, am I gonna definitely अगर आप आगे session के लिए aim कर रहे हैं, if you are transiting from one section from one class to the other like 6th to 7th or what, then also if you wish to join, if you're planning for it, go for it because I'm absolutely sure you're gonna love it, right? So you can just mention in the search bar as TTB06 for 6th class, for TTB07 for class 7th, of course जिसका आज हम lecture ले रहे हैं, right? Olympiad level है ना? Then TTB08 for 8th and TTB09 for 9th and TTB010 for 10th. Alright, then अगर आप interested हैं हमारे स्टडी मटेरियल में, if you wanna pace up your performance, if you really wanna have that amazing kick to your preparation, that start to that preparation, all you need to do is just visit www.talkingtextbooks.in, जो आप यहाँ देख सकते हो लिंक पे, है ना? So this is the official website and it's a beautifully designed website and amazing हमारा जो official साइट है, राइट? सो ऑल यू कैन गो एंड विजिट देयर ऑफ कोर्स, ठीक है. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की आपको वहाँ मिलती है. उसके अलावा इफ यू वांट टू परचेज आवर अमेजिंग मटेरियल, ओके, एंड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ऑलराइट, वीडियोस आप यहाँ पे ले रहे हैं, उसके अलावा क्विजेज हैं हमारे, एंड देन देयर आर लॉट मेनी डिस्कशंस विद अस, ऑलराइट, देयर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर इन द ट्रेजर ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स अपार्ट फ्रॉम दीज. सो उस सब के बेनिफिट्स अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट you have to purchase any of the 2 packages, whatever you feel like going for, alright? That is our study material. If you wanna go for the test papers, alright, so this is gonna be here, and if you wanna get
द एंटायर ईयर लॉन्ग पैकेज। अगेन आपके लिए यहाँ पे है। दूसरी बात बच्चों, ऑलरेडी प्राइजेस आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा बेस लेवल है, राइट? But then again, if you want a 30% का huge discount, all you need to do is just apply my code GS Live, which you can see here, है ना? So GSLIVE, I repeat, that is GSLIVE. So if you are applying that code, all you're getting is that you're getting a 30% again a discount over it, है ना? 30% is huge बच्चों. Already जो हमारे पैकेजेस के प्राइजेस हैं वो बहुत लो हैं, बिकॉज हम लोग का फिलॉसफी यही है, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, यू गाइज नो दैट, राइट? सो कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए. देन मूविंग टू द कार्डिनल प्रॉमिस. सो दिस इज व्हाट आई कॉल द एक्सक्लूसिव रिचुअल ऑफ टीटीबी, है ना, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का. सो कुछ भी बेहतरीन स्टार्ट करने से पहले खुद के लिए खुद से ही चलो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है? आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. I know you guys are already smart, है ना? चलो, so weather, climate and adaptations के ऊपर अब हम लोग questions करेंगे Olympiad level. Alright, please don't mind if I said transportation somewhere. I don't know why, because you know, I was just preparing for both. I mean, like, I was just ready for both of them for you guys. Alright, so yes, so we're gonna start with the transportation. बच्चों, आप इसके साथ you just start with it, all right? There's some issue with the board, with our क्या बोलेंगे इसको, remote. So I'm gonna get it fixed, all right? And I'm gonna get back soon. So जब तक आप इस question को solve कीजिए, all right? Anyways, it's okay. Let me just check it once more. Okay, no problem. Okay, so I'll just select a pen here. Pen. Okay. Tigers and leopards have stripes on their bodies. Help them. जो stripes होती हैं उनकी body पे, what do they help them with? So the answer is very easy. To mix with the surroundings. All right. Okay, chalo. Moving to the next question. Which of the following is an adaptive mechanism in the chameleon? Chameleon में कौन सा adaptive mechanism होता है? बताइए, क्या होना चाहिए आंसर? Easy से questions है ना? To hibernate in winter, changing colors to suit with its surroundings, to develop scaly skin on its body to maintain moisture, to migrate long distances in winter. So the answer here would be what, bachcho? Changing colors to suit with its surroundings. Obviously बात है, nature ने हर किसी को एक protective mechanism दिया है ना? राइट सबके पास होता है. तो कैमेलियन के पास क्या होता है बच्चों? दैट इट चेंजेस इट्स कलर्स. ऑलराइट, सो उसकी वजह से क्या होता है? सराउंडिंग के जैसा दिखने लग जाता है. उससे क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, प्रेडेटर्स से उसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which department prepare weather reports? Okay, so this is quite a good question and I think we should mark it as red as well. ठीक है, must remember weather reports कौन सा department prepare करता है? This is a factual question as well, बच्चों. You must remember it that meteorological, sorry, ठीक है. So meteorological department would prepare weather reports. ठीक है. Next question. Which instrument is used to measure rainfall? Okay, again a good question. बताओ भाई. यार ये तो क्वेश्चन मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मतलब रेनफॉल मेजर करने का किसने सोचा था? बट सी वी हैव गॉट सो मेनी अमेजिंग इन्वेंशंस, इजंट इट? रेनफॉल मेजर करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट. बताइए व्हाट शुड बी द आंसर? कुछ दिस इज इजी अगेन, है ना? आई डोंट थिंक. इज इट बैरोमीटर? नहीं. थर्मामीटर? नहीं. ठीक है यार, ये तो प्रेशर टेम्परेचर के लिए यूज में आएंगे, है ना? देन कम्स योर रेन गॉज. ओके, सो आई जस्ट अप्लाई इट हियर. पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा. ऑलराइट, सो द आंसर हियर इज रेन गॉज. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाइए कंप्यूटर जी. विच एनिमल हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट? ओके, सो विच एनिमल हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट? What should be the answer? Okay, so the answer here would be red-eyed frog. Okay, so the pen is not here. All right, बच्चों red-eyed frog जो होता है उसके पास होती हैं ऐसी फीट, है ना? तो उसके हम लोग बोलेंगे उसके जो फीट हैं वो इस तरीके से डेवलप्ड होते हैं. क्यों? टू बिकॉज दिस इज अगेन एन अडेप्टेशन टू इट. बिकॉज वो पेड़ों पे रहता है तो इसीलिए उसको चढ़ने के लिए इस तरीके का क्या चाहिए होता है? फीट, स्टिकी पैड्स उसके होते हैं फीट पे, जिससे कि वो उसको इजीली जो है ऊपर चढ़ पाए. जैसे हम लोग देखते हैं ना, यू नो दे आर लाइक, हम लोग नहीं कुछ कार्टून कैरेक्टर्स में हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखे होते हैं जो नो इस तरीके का कुछ दिखाता है. आई थिंक दैट इज इन हैरी पॉटर एज वेल. यार उसका कौन सा वाला पार्ट है? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान. यस, तो कहाँ जाते हैं वो बेसिकली? दे गो टू विच प्लेस यार? मेरे को वो पता नहीं. बहुत सारी कैंडीज एंड ऑल होती है ना. I really don't know, like that the shrieking shack जहाँ पे होती है वो, you know that जगह. I really don't remember. I am a great fan of Harry Potter. My God, मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, मैं कैसे भूल गई. This is such a bad thing for me. So चलो कोई बात नहीं. तो वहाँ पे वो एक ऐसे इंसान चढ़ता है और दिखाते हैं उसमें एक स्टूडेंट को, है ना? तो सिमिलरली लाइक दैट. ओके, सब बहुत हो गई हैरी पॉटर की बातें. ज़्यादा हुई तो हम यहीं अटक जाएंगे बिकॉज आई सो लव दैट मूवी. यार मुझे कमेंट्स में बताओ बच्चों किस किस को हैरी पॉटर सीरीज बहुत पसंद है. लाइक आई लाइक इट लाइक एनीथिंग. ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको पढ़िए. ऑलराइट, आंसर मी. आई थिंक इमेज लिटिल बिट ब्लर है शायद. ओके, एंड ओके, सो आई होप यू गाइज मस्ट हैव सॉल्व्ड इट आउट अभी तक, है ना? तो चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे. तो इसका आंसर बच्चों आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपने क्या आंसर इसका टिक किया है. बिकॉज हियर द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज बी. ऑलराइट, जिसने भी बी सही टिक किया है, टिक मार्क किया है, वाह बहुत अच्छी बात. ठीक है, सो टोकन बर्ड जो है बच्चों उसकी लॉन्ग बीक होती है, ये उसका अडेप्टेशन होता है. ठीक है, साइबेरियन बर्ड जो है उसका अडेप्टेशन होता है दैट इट माइग्रेट्स टू इंडिया, है ना? ऑलराइट,
ठीक है. सो आई होप माई रिमोट इज गोना वर्क नाउ. परफेक्ट, आई हैव गॉट इट. ठीक है. सो एंड बाकी सारे आप लोग देख ही चुके हो. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रैवलिंग ऑफ आर्कटिक टर्न टू लॉन्ग डिस्टेंसेस टू अवॉइड हार्डशिप्स ऑफ विंटर इज कॉल्ड एज. बताइए. लेट मी जस्ट चेक दिस कैमरा वंस. ओके, परफेक्ट. क्या बोलेंगे इसको बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन. है ना. इसमें तो यार सोचने की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है. उसी को तो माइग्रेशन बोलते हैं ना. अलग अलग लोकेशन से एनिमल्स, स्पेशली हम बर्ड्स को देखते हैं, माइग्रेट करती हैं. ठीक है. करती है ना, जिससे कि उनको वो जो एनवायरमेंट होता है वो सूटेबल नहीं होता. तो बिकॉज ऑफ चेंजिंग वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, दे टेंड टू migrate. All right, next question. Which of the following features is an adaptation to arboreal life? बताइए क्या आंसर होना चाहिए? Is it thick skin? Is it camouflage? Is it opposable thumb or is it hibernation? So obviously बच्चों branches hold करनी होती हैं, है ना. तो इसके लिए जो है opposable thumb is the adaptation. All right. Next question. Which of the following is an adaptation developed by the desert plants to manage the above situation? I mean the below given situations. ठीक है. Adaptation developed by the desert plants. Okay. Adaptation developed by the desert plants to manage the situation. बताइए. They have lots of branches and leaves. ठीक है. Above situation basically बच्चों यहाँ पे okay, so the image is not there. Basically यहाँ पे एक desert plant की image होनी चाहिए, या फिर हम लोग ले सकते हैं भाई उसको कैक्टस मान लेते हैं इस तरीके से. ठीक है. हम लोग कोई यार पता नहीं मैंने कैसा बनाया. आई रियली होप थोड़ा समझ में आ रहा हो आप लोग को. स्पाइंस 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 स्पाइंस. ठीक है. तो कैक्टस मान लो इसको. ठीक है. एंड दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस. तो बेसिकली क्या अडेप्टेशन डेवलप किया जाता है डेजर्ट प्लांट में? ठीक है. जिससे कि क्या हो, यहां से वाटर लॉस जो होता है. ठीक है. सिचुएशन जो इसे बताई हुई है वो है वाटर लॉस की. ठीक है. वाटर लॉस रिड्यूस किया जा सके. वो कैसे रिड्यूस होगा? क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो कंटिन्यूसली चलता है ना. फिर डेजर्ट प्लांट्स में क्या होगा बच्चों? इतना ज्यादा गर्मी, तो ट्रांसपिरेशन रेट और ज्यादा होगा. तो क्या अडेप्टेशन होता है बताओ? दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स. दे डू नॉट शेड लीव्स इन द समर. दे डेवलप रूट्स विच कम अबव द ग्राउंड. देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. So the answer here is evident. The leaves are modified into spines, है ना. स्पाइन्स होते हैं भाई. ऑब्वियसली बात है, सरफेस एरिया क्या हो रहा है? ठीक है. चेंज हो रहा है ना. तो लीव्स में तो इतना ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन इजीली हो जाता है. यहाँ पे स्पाइन्स होते हैं, लीव्स होती नहीं है. तो क्या होता है? वाटर लॉस रिड्यूस होता है. और इस तरीके से प्लांट के पास कंजर्वेशन ज्यादा होता है इन सच अ हॉट एनवायरमेंट. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लीफ इंसेक्ट. लीफ इंसेक्ट. ओके. आई होप आप लोगों ने देखा हो. It looks like totally like a leaf. आप उसको जज भी नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसा होता है. Yes. And polar bear living in snowy regions has white fur on its skin. Although these animals are very different from each other, what is the one way in which they are similar? They use their bodies to attack enemies. They use their bodies to confuse enemies. या फिर prepare food, migrate to long distances to protect themselves from enemies. So यहाँ पे बातें पूरी की पूरी दुश्मनों से related. तो बताइए. Okay, so they use their bodies to attack enemies. They migrate long distance to protect them from enemies. बताइए क्या होना चाहिए भाई आंसर इसका? They use their bodies. बच्चों क्या करते हैं ना ये
अब इनकी देखो बॉडी का कलर ही ऐसा होता है कि ये प्रेडेटर से बच जाते हैं, सो दे यूज देयर बॉडीज, राइट, सो दे मर्ज विद द एनवायरमेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द एनिमल गिवन बिलो प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस? बताइए. सो भाई ये हम बता दें, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दिस इज अ साइबेरियन क्रेन. क्रेन वो वाला क्रेन नहीं, ओके. दिस इज अ बर्ड नेम्ड साइबेरियन क्रेन. सो व्हाट डज इट डू टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस? ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन्स में रहती है तो क्या करती है बच्चों खुद के प्रोटेक्शन के लिए? बताइए. So the answer here is that it migrates to the warmer places. Obviously बात है, खुद को प्रोटेक्शन, जैसा मैंने बताया था ना कि बर्ड्स माइग्रेट करती हैं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, तो ये कोल्डर रीजन से थोड़े वार्मर रीजन्स में चले जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट. ऑब्जर्व द फिगर्स. स्लो लोरिस, चिम्प, मैन. विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉमन टू ऑल द थ्री ऑफ देम? बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर तीनों को कॉमन है? तो कौन सा? देखो बच्चों यहां पे इमेज भी ऐसी दी हुई है इस तरीके से, है ना. तो बेसिकली क्या कैरेक्टर में कॉमन आपको लग रहा है? ये गोरिल्ला है. दिस इज ऑफ अ मंकी एप, चिंपैंजी और अ मंकी एप. ठीक है, दिस इज ऑफ अ मैन. अब देखो कुछ ना कुछ इन्होंने ग्रिप किया हुआ है, ब्रांच को पकड़ा हुआ है, क्या है ना, और उसके लिए द मोस्ट बेस्टेस्ट अडेप्टेशन इज द अपोजिबल थंब. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द एनिमल गिवन बिलो प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस? हाउ डज द एनिमल गिवन बिलो प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस? तो फ्रॉग दिया हुआ है, इट्स एन एम्फीबियन. ये कैसे खुद को प्रोटेक्ट करता है? चलिए बताइए. माइग्रेट्स टू वार्मर प्लेसेस. कभी मेंढकों को माइग्रेट करते हुए देखा है क्या? हाँ, कि इंडिया से श्रीलंका चले गए या फिर कहीं और चले गए, लाइक दैट. माइग्रेट करते हैं क्या? हाइबरनेशन करते हैं. ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन से यार कुछ प्रोटेक्शन समझ नहीं आया. इट हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन. ये तो केसेस ही नहीं है. सो द आंसर इज दैट इट अंडरगोज हाइबरनेशन. ठीक है, हाइबरनेट कर लेते हैं ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बर्ड इज फाउंड इन पोलर रीजन्स? ओके, तो यार ये तो एविडेंट है, हमें करने की यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस इज द मोस्ट क्यूटेस्ट ऑप्शन हियर इज दिस, एंड दिस इज अ पेंगुइन, है ना. Who all like penguins? Kids, just let me know in the comment section किसको penguins बहुत पसंद है. I so like penguins, dolphins, like they're so very cute, isn't it? Like इनको देख के लगता है कि हाँ नेचर ने कितने ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं ना. एंड ऑफ कोर्स आप लोग को देख के भी लगता है सच क्यूट बच्चे भी नजर ना लगे किसी को. ठीक है तो चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से अब, है ना. ध्यान रखेंगे सब लोग. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Animals with feet as shown below are most likely to be successful to do which of the following activities? बताइए. देखो वेब्ड फीट है ना, वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग या जंपिंग. तो हमें समझ में आ रहा है ऐसी फीट किन एनिमल्स के पास होती है और क्या हेल्प करती है? बताइए. इजी, डक के पास होता है ना, तो स्विमिंग में हेल्प करता है. वी ऑल नो दैट, है ना. नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था. एन एनिमल इज ऑब्जर्व्ड इन द पोलर रीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी फाउंड इन दैट एनिमल? पोलर रीजन का एनिमल है, कहाँ रहता है बच्चों? पोलर रीजन में रहता है ना. तो कौन से अडेप्टिव चेंजेस
उसको उस पोलर रीजन में सरवाइव करने के लिए उसमें आय हो रखे होते हैं उसके बॉडी में, एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट आर दे, टेल मी। ग्रोथ ऑफ थिक एंड लेस हेरी स्किन, sharp beaks and strong claws, growth of thick fur on its skin, light weight, wings to fly. ओके, सो आई होप द आंसर इज क्लियर। मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी आनी चाहिए, राइट? ओके, सो द आंसर हियर इज ग्रोथ ऑफ थिक फर ऑन इट्स स्किन, है ना। तो थिक जितना स्किन है, फर है ना, उससे क्या होता है बच्चों, एनवायरनमेंट से हमें वार्मथ मिलता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, गरम गरम कपड़े पहन लेते हैं, राइट? वी हैव आवर वूलन वेयर्स, सो वी आर वेयरिंग दैट टू प्रोटेक्ट, सो एज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड एनवायरनमेंट, इजंट इट? तो एनिमल्स के पास तो स्वेटर्स, जैकेट्स, ब्लेजर्स, स्वेटशर्ट्स वगैरह नहीं होती, तो उनके पास क्या होता है, थिक स्किन होती है, नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड, और फर का लेयर होता है इतना, है ना, राइट? So next question, consider the following statements and select the option which correctly identifies true and false ones. Okay, so let us see who does it right. ओके, सो द आंसर हियर शुड बी, देखो बच्चों, पहला आता है कि भाई पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, हॉट एंड ड्राई है। नहीं, ईयर का इंडिया में ईयर का सबसे मेजर अगर कहीं रेनफॉल होता है तो वो होता है नॉर्थ ईस्ट में, तो इट इज नॉट ड्राई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स हो गया। दूसरा आता है थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, थिक स्किन एंड अ डेंस फेदर कवर इन पोलर बर्ड्स लाइक penguins protect them from severe cold weather. Yes, this is true, this is an adaptation. Polar animals need to conserve water due to water scarcity. ना भाई, कोल्डर एनवायरनमेंट में हम जब होते हैं हमें प्यास कम लगती है, सर्दियों में प्यास कम लगती है ना, तो वो तो रहते ही कोल्डर एनवायरनमेंट में, तो उनकी बॉडी, प्यास हमें कब लगती है, जब हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है। तो वहां पे उतना नीड ही नहीं होता, तो वाटर स्कैरसिटी वाला ये सब स्टेटमेंट इज लाइक absurd, राइट? Fourth, as we move higher up from a sea level, temperature becomes lower. Yes, this is true. तो इसके according answer is B. All right. चलो next question. Which of the following adaptations of polar bear are not meant for hunting prey and getting protection from predators? Let's see who answers it right. देखते हैं. White color of the fur, huge teeth, long hair between the pads on its feet, 2 thick layers of the fur, sharp claws on each foot. Now look at the options and give me the correct answer. I'll have some water within, ठीक है, तब तक हम पानी पी लेते हैं। बच्चों आंसर होना चाहिए यहाँ पे B, that is third and fourth. So 2 thick layers of the fur and sharp claws on each foot would help them survive. All right. So this was our 18th question. I really don't hope कि यहाँ पे मतलब I hope कि यहाँ पे कोई explanation needed नहीं है। कभी कभी I get overwhelmed, है ना? Sorry. Next question.
Which of the following adaptations are shown by kangaroo rats? पढ़िए और बताइए. Read it yourself and then tell me. Kangaroo rat. बच्चों ये चैप्टर में सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि हमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चले. तो सारे एनिमल्स, राइट, क्या अडेप्टेशन है, कहाँ पे कौन रहता है, कैसे कैसे अडेप्टेशन. सर यू नो वी सी हाउ डाइवर्सिफाइड आवर अर्थ इज. इतने सारे एनिमल्स होते हैं ना, इतनी वैरायटी. आई एम लाइक वाओ, इजंट इट दैट दिस इज सच अ ब्लिसफुल नेचर, है ना. So the answer here is this. बच्चों पता है कैंगरू रैट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा एनिमल है जो जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता. ही डजंट नीड्स वाटर एट ऑल. देखो ठीक है, लेकिन फिर भी इट लिव्स इन सच हॉट डेजर्ट्स, राइट. स्टिल इट कैन सर्वाइव बिकॉज वो जो भी सीड्स पे फीड करता है ना, उनके मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन से उसको पानी मिल जाता है बॉडी में इंटरनली ऑटोमेटिकली. इसलिए वो कभी पानी नहीं पीता. ठीक है. So and then of course they excrete very concentrated urine and they go aestivation to cope with heat, है ना. तो बहुत ज़्यादा concentrated urine, राइट, बहुत कम और बहुत ज़्यादा concentrated यानी कि जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है और एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है. जैसे अगर हम लोग जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं उसमें वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उनके में नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 species of fishes X, Y and Z with different body patterns are found in a lake. A predator who feeds on all these 3 fishes is introduced into the lake. Which of these fishes will be least affected? बताइए. X, Y, Z हमें 3 fishes बताई हुई है ना, डिफरेंट बॉडी पैटर्न्स हैं. तो एक प्रेडेटर यानी कि इनको खाने वाला, यानी कि कोई ऐसी और मछली या कोई हो सकता है, कोई और वाटर एनिमल है जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया लेक में. ठीक है. तो कौन सी फिश लीस्ट इफेक्ट होगी? सो ये उनके अडेप्टेशंस दिए हुए हैं. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है. बताइए व्हाट शुड बी द आंसर. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. मेरे हिसाब से द आंसर शुड बी द बेस्ट ऑप्शन हियर इज केमोफ्लाज, है ना. केमोफ्लाज से सबसे अच्छा तरीका ये होता है बच्चों कि आप एनवायरनमेंट की तरह बन जाते हो. ठीक है. अब क्या है ना, हमें समझ में आ सकता है बिकॉज ऑब्वियसली आवर ब्रेन इज वेरी मच डेवलप्ड ह्यूमंस का, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर एनिमल्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते. ठीक है. तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते. तो दिस इज अ प्रोटेक्टिव यू कैन से एजेंट जो कि नेचर ने ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड किया, मीन जिनको प्रोवाइड कर रखा है. ठीक है. गॉड ब्लेस देम. और इससे उनको क्या हो जाता है, प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट. Which of the following statements are incorrect regarding the given animal? So again, cute penguin and very cute polar bear. मतलब खतरनाक होते हैं बहुत, but I find them very cute, है ना. white gooey cute, soft से smooshy से होते हैं. So the answer here is fourth and D में fourth only. बच्चों देखो both हमारा fourth ऑप्शन बोलता है, हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन है which is incorrect रिगार्डिंग द गिवन, यानी कि दोनों का कंबाइंडली इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. वो ये है कि दोनों लार्ज नंबर में रहते हैं, हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म. तो बच्चों लार्ज नंबर्स में ग्रुप्स में कौन रहता है, पेंगुइन्स रहती हैं. लेकिन पोलर बेयर जो होता है वो एक सॉलिटरी लाइफ लीड करता है, यानी कि अकेला. ठीक है. अकेला सबका शहंशाह बोलते हैं ना कि वन मैन आर्मी.
तो इस तरीके के होते हैं, यू नो, दे आर टू कूल, दे आर लाइक ओके आई कैन नॉट जस्ट लिव इन द ग्रुप्स एंड ऑल, राइट, आई नीड अ सोलो लाइफ, सो आई एंजॉय माई सोलो लाइफ, है ना, खाऊंगा तो अकेले, जीऊंगा तो अकेले, लाइक दैट, बहुत रूडी भी, थोड़ा मूडी रूडी, लाइक राउडी टाइप होता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बाय पोलर बेयर, रेफर टू द गिवन अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स। ओके, ये अडेप्टेशंस दिए हुए हैं, which of the given adaptation of animals are for rainforest and polar regions respectively। X में रेन फॉरेस्ट के लिए दिए हुए हैं, मतलब बेसिकली बच्चों ये कुछ 8 आपको अडेप्टेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो X में जो दिए हुए हैं अडेप्टेशंस, ये पार्ट इज फॉर रेन फॉरेस्ट एंड दिस पार्ट इज फॉर पोलर रीजन्स, तो कौन सा इसमें से ग्रुप एकदम करेक्ट है, A, B, C और D फॉर बोथ, टेल मी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट ऑफ कोर्स हम कर लेंगे, है ना। So the answer here is A, alright, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, और अगेन इजी है बच्चों बहुत ज़्यादा, सो वी डोंट नीड टू यू नो पी सारा का सारा यहाँ पे, आपको अगर पता है एडेप्टेशंस के बारे में, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन यस दिस इज अ इजी क्वेश्चन, ऑलराइट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सो गाइज आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है एंड काफ़ी लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा, आई एम वेरी श्योर, है ना। देखते हैं भाई किन्होंने सही सॉल्व किया। So the answer here is again A। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सीधा हमें थ्योरेटिकल दिखते हैं, ठीक है, सो वी डोंट नीड नॉट टू डिस्कस मच अबाउट इट, ठीक है। ऑड वन आउट पिकअप करना है फ्रॉम ईच सीरीज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली इसमें भी बच्चों आपको सारा का सारा इजी दिया हुआ है, जैसे एलिफेंट, मंकी, रेड आइड फ्रॉग है, ठीक है, तो दे लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। पोलर बेयर किसमें होता है, पोलर रीजन्स में होता है, तो हम लोग इसमें से आराम से यू नो कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन इन द सेंस करेक्ट पिक आउट कर सकते हैं, राइट, है ना, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है, लाउड वॉइस, ब्राइट कलर्स एंड स्ट्रॉन्ग टेल्स किसके अडेप्टेशंस होते हैं, उन एनिमल्स के जो रेन फॉरेस्ट में है, जबकि वाइड और लार्ज पॉज पोलर रीजन के अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। और अलास्का, कनाडा, नॉर्वे पोलर रीजन्स होते हैं, ठीक है, जबकि नाइजीरिया जो है वो क्या होती है, दैट्स एन अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। सो इतने से हमें समझ में तो आ ही गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ बिहेवियोरल अडेप्टेशन, which of these is a behavioral adaptation? Hognose snake pretends as dead to trick the predator, okay, yes, ये कुछ लोग करते हैं। In fact, it's not only about snakes, हम लोग भी कभी कभी यू नो स्कूल नहीं जाना होता तो we'll pretend like oh god almost dead, very very sleepy, या फिर you know like that, अरे यार सो रहा है डिस्टर्ब मत करो, है ना, like that। So what should be the correct answer? बिहेवियोरल अडेप्टेशन क्या होना चाहिए बच्चों,
Okay, so the answer here is easy, easy. Pretends is dead. Okay, next question. Refer to the given figures. Okay, हमारी अर्थ दी हुई है, इक्वेटर्स डिवाइड किए हुए हैं. Different temperature zones of Earth and select the correct statement. बताइए, what should be the correct answer? Made it more easy. ठीक है. फ्रिजिड मतलब बच्चों कोल्ड, कोल्ड जोन. ठीक है. टेम्परेचर, टेम्परेट. ठीक है. टेम्परेट एंड देन वुड बी योर टॉरिड. ऑलराइट. सो टेम्परेट आपका होगा वार्म. टेम्परेट वुड बी वार्म. ठीक है. एंड टॉरिड मतलब ट्रॉपिकल. ठीक है. ट्रॉपिकल जोन्स. ऑलराइट. बेसिकली सब कुछ 3 टेम्परेचर जोन्स में डिवाइडेड है ना. सो आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the following statements carefully and select the option which correctly identifies true and false ones. Okay. Chalo, let's begin. Yes, this is true. ये तो सही है ना. अगर हम यहाँ लेके चलें तो this is true. Heavy and solid bones help penguins to swim through water at a speed up to 15 miles per. Nah, Baba. This would be a false thing. Toucans have 4 clawed toes in each leg, 2 in front and 2 at the back. So this is true. Most rainforests lie between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. That is why they are often called as tropical rainforests. Yes, so the answer here is C. So I hope you guys understood. And I'm very sure कि आप लोगों ने correct mark किया होगा. Okay? नहीं किया है तो you can write it down. ठीक है बच्चों. Penguins have got streamlined bodies बच्चों, web feet और wing shaped flippers. ठीक है. जो कि उनको help करते हैं किसमें? Swimming में. So I'll have a little bit more water. जिसने नहीं लिखा है वो please लिख लो and then we'll move to the next question. Okay, next question. Okay. Yeah. The lizard is well adapted to live in human dwellings. Which function of its adaptation is incorrectly described? Okay. So lizard, I fear lizards like anything.
बहुत डर लगता है मुझे छिपकलियों से। एंड मैं एक चीज़ और बताती हूँ, दैट आई कॉल देम डायनासोर्स, ओके, सो बिकॉज वेरी क्रीपी, मुझे बहुत डर लगता है। किस किस को और डर लगता है छिपकलियों से, मुझे कमेंट सेक्शंस में अवश्य बताएं। फिलहाल फोकस करिए, हाँ ठीक है। So the answer here is, okay, so the answer here is D, ठीक है बच्चों। लिजर्ड क्या करती है ना, अपने डिफेंस में कभी क्या करेगी, अगर उसको लगता है कि हाँ उस पर अटैक होने वाला है, तो व्हाट इट विल डू इज कि इट विल, अगर उसको टेल से कोई पकड़ ले तो वो अपनी टेल को जो है उखाड़ फेंकती है, मतलब कि अपनी टेल को क्या करती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है, वहां से उस पोर्शन को हटा देती है। उसके बाद कुछ देर तक वो टेल क्या करती है, फड़फड़ाती रहती है ना। उससे क्या होता है, प्रेडेटर को लगता है ओके ओके, सो इट्स लाइक डाइंग इन समथिंग, सो इट इज लाइक अ मेथड ऑफ डिसेप्शन फॉर देम, ठीक है, ऐसे वो डिसीव करते हैं उसको, ऑलराइट। एंड देन कुछ वीक्स बाद वो रीजनरेट हो जाती है वापस से, है ना, कुछ टाइम बाद वापस से वो टेल रीजनरेट हो जाती है, ओके। सो है ना, तो इट इज नॉट टू अट्रैक्ट मेल्स फॉर mates for reproduction, no. All right, next question, consider the following statements each with one or two blanks. Camel skin does not possess glands. The Siberian crane migrates from Russia to India as the dash approach. Many birds living in polar region to warmer regions in winters and near places. Okay, let us see what is the correct option. यहाँ डैश है, पोजेस डैश ग्लैंड्स, विच ग्लैंड्स ये बताना है आपको, ठीक है। मेनी बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन्स, देन यहाँ पर भी एक डैश है, यहाँ पे है डैश, वार्मर रीजन्स इन विंटर्स, ऑलराइट, ओके, क्या ओके, सो लेट्स सी इसने आंसर सही किया है। The answer here is A. All right, chalo, next question. Refer to the given Venn diagram and select the correct statements regarding animals X, Y and Z. Venn diagram में देखिए और X, Y and Z animals के लिए जो correct statement है उसको यहाँ से pick up करो and tell me the correct option for it. Okay, so let me just mention it here. X क्या हो गया बच्चों? X हो गई आपकी पेंगुइन, ओके, Y हो गए आपके पोलर बेयर, ठीक है, और Z हो गया आपका टोकन, टोकन जो भी आप इसको बुलाओ, ठीक है। अब आई थिंक आंसर बहुत सरल हो जाने वाला है, और ज्यादा सरल, है ना। तो बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए इसका? The answer here is, the answer here is A. ठीक है जी, ठीक है ना, सो इजी था।
ओके और ये बताने के बाद तो और इजी है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में आते रहते हैं। वेन डायग्राम दे देंगे, फ्लो चार्ट दे देंगे, ठीक है, टैबुलर फॉर्म देंगे, टेबल दे देंगे। हमें पैनिक नहीं करना, क्वेश्चन को आराम से रीड आउट करो, सब थ्योरी से उठा हुआ होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा लेवल तो आप रखेंगे यार, ओलंपियाड्स है ना, इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर अ वेरी अमेजिंग एग्जामिनेशन अहेड, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करो, गॉड ब्लेस यू। मे बी IIT, मे बी किसी को डॉक्टर बनना हो तो, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो पैनिक नहीं करना, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने, और आपको जहां लगता है कि यार एडिशन या चीज है तो उसको वहां ऐड ऑन कर दो अपने नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पैसेज रीड करो, देखो कितना बड़ा सा पैसेज दे रखा है यहाँ पे। The land near the equator is colder than the land away from it. Near the equator, sun's rays fall vertically. As the latitude increases, the rays become more and more slanting. Vertical rays spread over a larger land area than slanting rays. Also, they pass through a thicker layer of atmosphere which absorbs a large part of their heat. Hence, the land near the equator gets heated up lesser by the sun, and then the land away from it in a given time. Some of the words have been italicized in the given passage. Italicized in the given passage, जो नहीं भी किए हैं लेकिन हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। Select the incorrect statement regarding these. बताइए, what is the incorrect statement? Even, चलो बच्चों, let us take it. Even if it is not italicized, let us assume, if we know the theory again, तो हम आराम से एक लाइन में डिफेक्ट निकाल सकते हैं, right? And I am very sure that you guys have attended the lectures well, and यार ओलंपियाड लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो हमें पक्का आता है ना। और नहीं भी आता, मेक योर एफर्ट्स, एल्स लास्ट में आई एम गोना गिव यू द ऑप्शन एंड यू गोना आइडेंटिफाई इट फॉर श्योर, बट लेट अस मेक द एफर्ट्स फर्स्ट, है ना। चलो लेट्स डू इट। Oh, I'm sorry. Okay. Just to make a little bit more easier, colder and then larger, thicker, ठीक है। ओके, अब बताइए भाई, अब तो बता दो यार, अब तो इजी हो गया, अब तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, है ना, अब तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। सो द आंसर हियर इज ए। ओके, सो यार अब तो मैंने देखो हाईलाइट कर दिया, जो भी यहाँ पे इटैलिसाइज नहीं है, इट्स ओके, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड। सो अब हम इसमें बता सकते हैं, किसी ने नहीं बता पाया तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given flow chart and select the option which correctly identifies P, Q, R and S. P, Q, R and S. देखो अभी मैंने फ्लो चार्ट की बात की थी और यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। सो पैनिक नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी रेड एवरीथिंग। ऑलवेज एफर्मेट बिफोर योर एग्जाम्स, मुझे सब आता है, नहीं भी आता है तो भी बोलो आता है यार, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमें जो चीज नहीं आ रही होती है ना, एट टाइम्स एग्जाम के टाइम पे पॉप आउट हो जाती है, एंड सी एंड वी डू वंडर्स, है ना। इसी को बोलते हैं किस्मत है ना, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना है, राइट। पी, क्यू, आर एंड एस में दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू गाइज। So the answer here is A. All right, बच्चों, I hope
that you guys have marked it right. नहीं भी किया, it's okay, this is a good thing, so do make it right for you. Alright, so yes, ये हमारा Olympiad session आपका done. Thank you so much everybody for being with me. I really hope कि आपको मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, है ना? ऐसे questions और इतनी मज़ेदार lectures and you know solutions and all, everything for your information, informational videos, fun videos, quizzes, talking textbooks आपके लिए लेके आता ही रहता है, ठीक है? So do not miss even a single of it because it's like totally amazing, like this session. इससे भी बहुत अच्छे होते हैं ना? So whoever hasn't subscribed to the channel, do hit that subscribe button and of course ये बेल आइकन ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू नो कोई भी ऐसा अमेजिंग सा पार्ट ऐसा इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए राइट सो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स यही तो करता है ऑलवेज कीप यू ऑन द टॉप इजंट इट सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट दिस लाइक बटन एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात दैट बच्चों व्हाटएवर एनर्जी आई टेक इन इज जस्ट you guys is pure reciprocation क्योंकि आप इतने प्यारे हो मुझे ऑटोमेटिकली इतना एनर्जी रहता है टू यू नो कि और क्वेश्चंस लेके आते हैं ऐसे सेशंस रखते हैं राइट तो इट्स लाइक आई कैंट इवन स्टॉप स्माइलिंग सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी ऐसे ही डू कीप यू नो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑलराइट कीप ऑन स्टडिंग बाकी कुछ इशू है डू मेंशन मी इनटू द कमेंट सेक्शंस लाइक हाउ डिड यू लाइक द सेशन हाउ वाज इट आई वुड रियली लाइक टू नो हाउ यू गाइज आर फीलिंग अबाउट बायोलॉजी कैसा आपको लग रहा है ठीक है सो थैंक यू so much for being with me. This is Dr. Gitanjali Sharma and I'll see you later. Bye. Take care.